Welcome to the Passionate Pulse podcast. On today's episode, we are thrilled to welcome a special guest who epitomizes determination and passion. He's a self made culinary genius of a global renown, a master chef without formal hotel management education. Yet, he is not only successful managing multiple Vishnuji Ki Rasoi restaurant franchises in both India and the US, but also imparting his wisdom as Professor Emeritus at MGM College of Hotel Management, Aurangabad. What sets him apart is his uncomplicated yet effective approach to the business. He stands out as a rare franchisee owner who is deeply invested in every aspect of his franchises. A living testament to the power of passion and persuasion, he continues to forge ahead on his gourmet journey. With 11 world records under his belt, he has used his culinary prowess to champion various social causes. Despite his extensive business travels, he has masterfully maintained the unity of his entire family. Even in today's contemporary society, he upholds the traditional Indian values of living within a joint family where meals are shared at the same table, fostering a profound sense of togetherness. Amidst his busy schedule, he ensures that love and laughter continue to flow abundantly within their familial bonds. Beyond the kitchen, he is a multifaceted individual with a love for music, theatre, and arts, all fueled by his affection for people and food. Engaging with his experimental spirit is an inspiring experience. His television ventures, including the famed show Mejwani, along with the radio programs like Seedhe Tawase and Chulha Chauka, and his YouTube master recipes, have contributed significantly to the global recognition of Indian cuisine. However, his talents extend beyond the culinary world. A remarkable actor as well, he has graced the silver screen in films like Once More and Sir Senapati Hambirrao Mohite, and is currently engaged in a web series titled Ballava. What started as a modest catering venture to make ends meet as it transformed into an awe-inspiring journey of 54 books of culinary arts, cooking workshops, and even setting unimaginable world records. His story is the quintessential zero to hero narrative. We take immense pride in introducing the living Indian Ballavacharya, Chef Vishnu Manohar, right here on the Passionate Pulse platform. Get ready to dwell into his straightforward business principles and accompany him on his magnetic journey that's anything but ordinary. This show is sponsored by V Square Foods, who provides event management and best quality Konkan specialty packaged foods and spices to your doorstep. Thank you, Vishnuji, Thank for you. honoring us and coming here. सगळ्यात पहिले मला तर हे सांगावंसं वाटेल की बाबा मी स्वतःला क्लेम करत नाही की बाबा आय एम मास्टर शेफ, कारण हे जग एवढं मोठं आहे कुकिंगचं. इट्स अ बिग इंडस्ट्री आणि रोज नवीन काही काही प्रयोग होत असतात. आणि एखाद्या पदार्थातला त्यात घालणारा इन्ग्रेडियंट जर आपण बदलला तर तो नवीन पदार्थ तयार होतो. मग तो मला माहीत नसतो, तुला माहीत असतो. मग मी कसं काय स्वतःला मास्टर शेफ म्हणू. सो दॅट हे क्लिअर व्हायला पाहिजे की कोणीच मास्टर शेफ नाही आहे, कारण हे जग एवढं मोठं आहे. रोज काही ना काही नवीन बदल होत असतात आणि छान वाटतं आहे करायला. फक्त मला बेसिकली माझी आवड जी आहे तर पारंपरिक पदार्थ, पारंपरिक रेसिपीज त्यांना कुठे समोर आणता येईल आणि लोक ते करतील ही आहे. Wonderful, बढ़िया. So, when you were like, set out to take first catering job, which was like something that you really grabbed the opportunity and you moved forward with it. You, in spite of mother saying no to it, you and your brothers, took a call, made it offline, and made that event, that marriage successful for 250 people. Designed the menu, worked on all the lines. So how that journey began, what triggered you to take that opportunity? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उस समय मैं 15 साल का था. 15 साल की उम्र थी, मैट्रिक हुआ. मैट्रिक जब मैं हुआ उस समय पहले मैं डेकोरेशन के काम करता था. थर्माकोल के लेटर्स लगा के मेरे पापा लेटर्स काट के देते थे और हम लगाने जाते थे शादी ब्याह में. ऐसे ही एक कैटर से मुलाकात हुई और कैटरिंग का काम करते करते मुझे, कैटरिंग का नहीं, डेकोरेशन का काम करते करते कैटरर का जो काम था, जैसे बर्तन लगाना, ये सब मेज पे रखना, खाना लगाना, तो बहुत ही इंटरेस्ट उसमें आने लगा और आउट ऑफ द वे जाके मैं उसको हेल्प करता था उस समय.
तो पता नहीं उसे क्या लगा, ऐसे फील हुआ कि शायद ये अपनी जगह ले लेगा या केटरिंग का काम शुरू करा। तो उसने एक दिन अचानक मुझे कुछ तो बोल दिया कि नहीं अभी आपका ये डेकोरेशन का काम नहीं, प्लेट पोछने का काम है, आप ये करिए। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं अब तो मैं यही काम करके बताऊंगा, और वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में कि मैं केटरिंग में आया। और 1 साल बाद मैंने एक पहला काम लिया। एट दैट टाइम आई वाज 16, 10वीं में था। और मैंने उस समय हालत ऐसी थी कि मेरी सिस्टर उस समय 21-22 साल की थी, और मैं सपने देखा करता था कि मेरे सिस्टर की शादी में मैं इस कैटरर को बुलाऊंगा, भले कर्जा लेना पड़े, मैं कर्जा लोन लूंगा, बट इससे काम करूंगा। बाद में उल्टा होगा, शादी का काम मुझे ही करना पड़ा। बहुत ही बढ़िया। तो जिस समय आपने डिसाइड किया, ठाम लिया कि मुझे ये कैटरिंग में काम करना है, उसके पहले आपके कुछ अलग सपने थे? आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना था, आपको स्टार बनना था, उसके लिए आपने कुछ कोशिश भी की, आप पुणे स्कूल में भी गए, फिर वो सब सपना कहीं रुक गया। हाँ। और उसके बाद वाला स्टार वाला जर्नी सबको पता है। हाँ, तो वो क्या हुआ था? वो सपना ऐसा था कि मैंने लाइफ में मेरे पापा के यहाँ अच्छे लोग आते थे सब, और मेरे पापा बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे इंसान थे, पर बहुत सिंपल थे बेचारे। तो उन्होंने पैसे खूब कमाए नहीं, तो उनके आने वाले लोग सब गाड़ी वाले थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ये गाड़ी घोड़ा शान और शौकत मेरे पास भी होना चाहिए। और उस समय मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं खुद की परिस्थिति ऐसे सुधारूंगा कि मैं भी इनके जैसा बनूं। उस समय मैंने मूवी देखी थी, फिल्म याराना। हाँ। और याराना मूवी देखने के बाद अमिताभ बच्चन जैसे जीरो से हीरो बना, तो लगा कि नहीं भैया, मैंने भी ऐसे कुछ तो करना चाहिए, और नेम फेम मुझे चाहिए था। हाँ। तो उसके लिए क्या सबसे सरल तरीका जो है, तो फिल्मों में काम करूँ, नाटक में काम करूँ। तो मैंने कहा कि बड़ा बढ़ के मैं एक्टर बनूंगा। और गणेश जी वगैरह होते थे गणपति के प्रोग्राम में, मैं नाटक का मंचन करता था, गाता था, ऐसे सब कुछ चलता था। 10वीं के बाद मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। मेरे चाचा थे पूना में, उनके जरिए एडमिशन मिली। पर उसी समय मैंने कैटरिंग का काम भी शुरू किया। तो कॉलेज में जाने के बाद पता चला कि भैया 5 साल बाद अमिताभ बच्चन बन के हम बाहर तो नहीं आ सकते, पर मेरा कैटरिंग का काम मुझे कहाँ ले जाएगा ये मुझे पता है। मैं 3 महीने के बाद दिल पे बोझ रख के वापस आया और कैटरिंग का काम मैंने शुरू किया। आपको बचपन से ही बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, ऐसा नहीं कि एक ही काम आप करते थे। घर संवारने के लिए आपने बहुत काम किए, इनफैक्ट बुक बाइंडिंग का भी काम किया, बहुत छोटे मोटे रास्ते निकाल के आपने फिर कैटरिंग बिजनेस आपके पूरे फैमिली के साथ। सबसे बढ़िया बात तो है कि आपके भाई और आपके बहन ने मिलकर पहला शुरू किया, जो अभी तक वही एक सिलसिला जारी है। बहुत कम फैमिली बिजनेसेस इतने लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। बहुत सारे भाई एक आगे जाके स्प्लिट होते हैं, लेकिन आपका कुछ अजूबा ही अलग है कि पूरे फैमिली का, कि सारे लोग बैठ के अभी भी इकट्ठा खाना खाते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। तो ये क्या सीक्रेट है, कैसे आपने पूरी फैमिली, मतलब आप तो सबसे छोटे जी, बट इतना बड़ा नाम होने के बाद भी आपके सारे भाई और आपकी बहन अभी तक आपके साथ खड़े हैं? बराबर। तो बेसिकली ये मेरे ऐसे लगता मुझे कि ये मम्मी पापा की सीख होगी, और बिजनेस भी ऐसा रहा कि जिसके कारण हम जुड़े रहे, और कभी ऐसा विचार भी नहीं आया कि ये अलग है, ये मेरा अलग है, उसका अलग है। और आप मुझे बच्चे छोटे थे तब तक तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि कौन सा बच्चा किसका है। इतना सारा घुल मिल के सारा काम होता था। तो और ये तो मैं कहूँगा कि संस्कार जो घर वालों के पहले से, और जो पापा ने बोला कि कहीं छोड़ के मत जाना एक दूसरे को। और ये बिजनेस हमारा, मैं बिजनेस को ही धन्यवाद देता हूँ। बिजनेस ही ऐसा हुआ और उसमें ऐसे गठित हो गए कि एक दूसरे को चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। हाँ। तो अभी भी 15-20 लोगों का खाना, 20-22 लोगों का खाना बनता है घर में, और मज़ा आती है। अब 20-22 लोग पूरे फैमिली से नहीं है, पहले 16 लोग थे, फिर अभी ये सारे लोग इधर उधर बच्चे जो हैं पढ़ने चले गए, अभी 10 लोग तो साथ में हैं, पर बाकी जो हैं तो हमारे यहाँ जो काम करने वाले वो भी कई सालों से हमारे साथ में है। वैसा ये 15-20 लोगों का खाना रोज अभी भी बनता है, और एक ही किचन है।
वाह, एक ही किचन है एक ही घर में, अमेजिंग। आपका घर भी एक बहुत मैजिकल स्पेस है, क्योंकि बहुत अलग तरीके से ये घर को आपने संवारा है। जिस तरह से वो आर्किटेक्ट हुआ है, जिस तरह से वो बिल्ड हुआ है, उसमें कुछ मॉडर्न फ्लेवर्स नहीं है, बहुत सारे साइंटिफिक ओल्ड स्टाइल बेस्ड जो बनाया है। तो उसके पीछे क्या रहस्य है, और क्या ये एक सिर्फ किसी को दिखाने के लिए था, या इसके पीछे कुछ अलग गणित है? नहीं, इसके पीछे अलग गणित भी है, एक सोच भी है। सबसे पहले घर के बारे में बता दूं मैं कि पहले मैं जब घर में रहता था 12 फीट बाय 20 फीट का टीन शेड था, और उसी में हम छः लोगों की फैमिली, और उसके बाद में पापा का स्टूडियो नीचे साइड में, ऊपर एक 12 बाय 20 की टीन शेड में हमारा किचन, हमारे रहने की जगह, हमारा सोने की जगह, सब भाई बहनों का पढ़ाई वढ़ाई सब उसी में हुआ। तो उस समय मुझे लगता था कि मैं बड़ा घर बनाऊंगा। हाँ, और वो भी फिर हमेशा याद आता था कि बड़ा घर बोले तो बड़ी जगह तो शहर में तो मिलेगी नहीं, वो शहर के बाहर मिलेगी, बजट अपना है ही नहीं, कुछ नहीं। पर क्या हुआ, भगवान की दया, मेहनत और ब्लेसिंग्स, तो इसके कारण दिन बदलते गए। और आज मुझे बात करने में अच्छा लगेगा कि नागपुर की एक अच्छी एरिया, सिविल लाइन्स एरिया, जिसमें 20,000 स्क्वायर फीट का मकान है, तकरीबन आधे एकड़ में। और वो मकान भी बनाते समय मैंने कहा कि भैया नहीं, मैं पहले से मुझे पुरानी चीज़ें, एंटिक, इसका सबसे ज़्यादा मैं ये बहुत ही करीबी मुझे लगता था हमेशा। और मैं सोचा करता था इतने बड़े बड़े ताजमहल, इतने पुराने ये ब्रिज वगैरह, ये सब कैसे बने होंगे, क्या बने, उस समय तो सीमेंट था नहीं। फिर उसकी मैंने पढ़ाई की। फिर हमारा एक दोस्त है हबीब खान, तो वो भी इस टाइप के ही है। तो बोले यार विष्णु, तेरा घर जो बनाते हैं अपन पुराने स्टाइल में बनाते हैं, विदाउट सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करें। बोला ठीक है चलो बनाते हैं। और बोले थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा, बाद में टाइम भी लगेगा, तो उसके लिए तैयार है। बोला हाँ। तो मकान बनाते समय केवल प्लिंथ लेवल तक सीमेंट का इस्तेमाल किया। उसके बाद पूरा चूना और मिट्टी, रेती, गुड़, गोबर, उड़द की दाल, चने की दाल, ये सारा इस्तेमाल करके वो घर बनाए, जिसका अभी टेम्परेचर जो है, तो बाहर यदि 40 टेम्परेचर है तो यहाँ 30 का टेम्परेचर होता है। और उसके अंदर आने वाली हवा जो है, तो नेचुरली एयर कंडीशनिंग का जो एक किस्सा था कि जो पुराने राजा महाराजा का क्या करते थे कि जमीन के नीचे 20 फीट नीचे जाने के बाद कांस्टेंट एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो वहाँ हवा घुमाकर ऊपर लाना, तो ये कॉन्स्टेंटली चलता है। तो उसके कारण घर जो है नेचुरली एयर कंडीशनड है, एक कांस्टेंट हवा उसमें रहती है। सोलर है पूरा तरीके से। उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा इस्तेमाल किया है। उसकी जो दीवार है, इस टाइप की दीवारें आप देखेंगी कि जिससे इस यहाँ तो गोबर नहीं है, यहाँ तो गोबर क्रिएट किया, बट वहाँ रियल गोबर है, और गोबर की दीवारें हैं। उसका जो प्लास्टर है उसमें घोड़े के बाल डाले हैं ताकि वो प्लास्टर गिरे ना। इस टाइप का घर है, 150 साल पुराना। उसमें पियानो एक लगा है, और 100, 150 साल, 100 साल ऐसे पुराने दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सारी इधर उधर से इकट्ठा करके उसको सेट किया प्रॉपर, कैसे लगे कि नहीं पुरानी हवेली है ये। अरे वाह, तो मतलब आपका घर एक म्यूजियम है, हम सबको आना चाहिए देखने के लिए। और ये चाहत देख के ना कई लोग वहाँ सामान भी ला के देते हैं कि ये हमारी पुरानी दादा की, ये दादी की, ये इसने रखा हुआ, ये उसने रखा हुआ, ऐसा सब सामान इकट्ठा होता है। अरे वाह, तो दिस इटसेल्फ इज अ प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू व्यू। बिल्कुल सही बात है, कभी भी आइए आप। जरूर। मुझे लगता है कि एक स्कूल ट्रिप करना चाहिए। हाँ। कि आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स के लिए होता भी है ऐसा, कभी होता है। अरे वाह। आर्किटेक्ट स्कूल जो है उसके स्टूडेंट्स आते हैं, उस पर स्टडी करते हैं और चले जाते हैं। दीवार इतनी बड़ी भी मोटी है, 20 इंच 18 इंच की ऐसे, इतनी मोटी दीवार है। वाह। तो अभी ये सब घर तो बना आपने जैसे सोचा हुआ था, उसके लिए मेहनत तो कई साल तक, मतलब अभी भी मुझे पता है आपको कितनी मेहनत किचन में करनी पड़ती है, सबके साथ घुल मिल के बैठ के कोई रेसिपी तैयार करना, वो कंसिस्टेंटली रिपीट करना, ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। और सब कारागिरों को लेके उनको इकट्ठा बांध के, क्योंकि किचन में भी एक हार्मनी होनी चाहिए, बराबर, तो वो भी एक अलग ही लेवल की मैनेजमेंट होती है, और उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स फेल होते हैं।
एक टाइम के बाद एक रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छे से चल जाता है, लेकिन जब वो फ्रेंचाइजीज ओपन करने जाते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। दूसरे देश में जाए तो और भी कठिनाई बढ़ती है, क्योंकि वो स्किल कारागिर नहीं मिलते, फिर वो एक रैपो नहीं होता, या फिर उसमें वो जान नहीं होती जो कर। तो वो सब आप कैसे लाते हो जब कोई और फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं? देखिए, फ्रेंचाइजीज वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत कम है, दिया ही नहीं, एक ही दिया है। और वहाँ पर भी मैंने फिर मेरे यहाँ 35 साल से लोग काम कर रहे हैं, और वही मैं छोटा स्कूल है नागपुर में, वहाँ पे मैंने शेफ तैयार करना शुरू किया। और मेरे यहाँ जब बच्चा काम करता है तो जरूरी नहीं कि उसने पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ भी पढ़ा लिखा है तो आजा भाई, हम देखते हैं, उस हिसाब से उसको तैयार करता हूँ और स्क्रैच से लेके तैयार करता हूँ। तो इसलिए जो मैं चाहता हूँ, जिस प्रकार का मेरा टेस्ट है, वही टेस्ट उसमें डेवलप होता है, और ऐसे बच्चे सब दूर काम करते हैं। और ये सारा अभी मोबाइल वर्ल्ड जो है, जिसके कारण हम घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं, तो उस प्रकार से हम सारा कहाँ कौन से किचन में क्या चल रहा है, कौन से कपड़े पहने हैं, यूनिफॉर्म में है कि नहीं, हेड गियर पहना है कि नहीं, ये सारा दिखता है, और उस हिसाब से मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये पीपल मैनेजमेंट का कुछ नुस्खा अगर आप हमारे ऑडियंस को देना चाहे कि अगर कोई भी बिजनेस करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी बैक स्टेज टीम अच्छे से काम करे। देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि जब भी आप कोई रेस्टोरेंट निकालते हो तो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है तो उसको सबसे पहले, या ओनर है, उसको सबसे पहले आप क्या बेच रहे हो खाना, वो खाने के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। कि एक रेसिपी मैं दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो उसका नाम कहाँ से आई, यहाँ बनी है क्या, पारंपरिक है क्या, ट्रेडिशनल है क्या, ये सारा उसको मालूमात होनी चाहिए। तो वो चीज़ यदि क्लिक हुई कि ओनर को पता है, तो उसके साथ क्या होता है कि ओनर के यहाँ जो काम करता है बंदा किचन में, उसको भी मालूम है कि भैया ठीक है, मैंने नहीं किया बराबर, ओनर को सब मालूम है, तो वो भी डिसिप्लिन में रहता और काम बराबर। क्योंकि वो आत्मा जो कहते हैं ना बिजनेस की, वो उसी में है। अगर वो कुछ समझ में रिलेट नहीं कर पाए कि क्या चल रहा है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भैया दिल से खिलाओ जो भी खिलाना है, गले के ऊपर ध्यान मत दो आप कि भैया कितना मेरे को मिल रहा है। अरे ठीक है, जो मिला है मिला, बराबर मिलता है, ठीक है ना। और आप दिल से खिलाओ, पैसा अपने आप आएगा। हमेशा मैंने यहाँ देखा, जब हिंदुस्तान के बाहर, जब अमेरिका में, कि काउंटर पे पहले पैसे ले लेते हैं। हाँ। पहले आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अंदर जाके ये। तो वो ट्रेडिशन हमने यहाँ नहीं रखा। हम कहते कि जाओ जाओ खाना खा लो पहले, बाद में देखेंगे, और लोग बराबर आके पैसे देकर जाते हैं। हाँ। बढ़िया। तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में आने से पहले आप तो कैटरिंग कर रहे थे, वो बहुत अच्छे से चल रहा था, जिसके ऊपर आपने काफ़ी अच्छी, लाइक आपकी फैमिली बहुत अच्छे से सब सेटल हो गई। फिर आपने रेस्टोरेंट चालू किया। बराबर। पहला था आई थिंक सन्मान, दूसरा था मिर्च मसाला, जो चले नहीं बराबर, और उसके बावजूद आपने फिर एक रिस्क लिया। जी। तो वो आपका सोली रिस्क था या आपके भाई और वो सब ने मिलके कि नहीं नहीं अभी और एक बार कोशिश करते हैं? कैसा था वो टाइम कैसा था, और जो फेलियर्स थे उससे आपने क्या सीखा? क्योंकि हर कोई फेलियर आपको बहुत बड़ी सीख देता है जो सक्सेस नहीं दे पाता। तो वो क्या थी जो अगर हमें अपने ऑडियंस को बताना है और उनके तक उन तक पहुंचाना है कि जो अभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कोशिशें उनके पैशन के साथ कर रहा है, बट फेलियर्स आ रहे हैं और वो देख नहीं पा रहे कि इसके आगे क्या, उनको उस हालात से बाहर निकलने के लिए हमें आपसे कुछ जानना देखिए कैसा होता है कि फेलियर्स के कारण 2-3 होते हैं। एक तो पहला प्रोजेक्ट फेलियर नहीं था, सन्मान, वो अपने आप में अच्छा था, उसके अपने दायरे में वो अच्छा चल रहा था, एक लिमिटेड उसमें से पैसे आते थे, पर हमको आदत थी कैटरिंग की, एक साथ बहुत सारे पैसे देखने की। और जहाँ ऐसे आदत होती है, बाद में हम देखते हैं यार इतना दिन भर मेहनत करो, इतना सा मिलता है, तो इसलिए हमने बोला यार मजा नहीं इसमें। तो वो फेल्यूर नहीं कह सकते, नहीं यार, एक इंसान की जिंदगी आराम से चल सकती थी उसमें। तो पहला वो चला गया। फिर दोस्तों हमने मिर्च मसाला निकाला, तो मिर्च मसाला रियली फेल्यूर था, क्योंकि वहाँ एक तो पहले नॉनवेज रेस्टोरेंट था, उसको हमने वेज में कन्वर्ट किया, तो पहला जर्क वहाँ मिला।
अच्छा। हाँ, लोग नॉनवेज करके आते थे, वेज तो फिर धीरे धीरे ये कम होने लगा, फ्लो कम होने लगा। और मैं भी वहाँ का जो ओनर था उस रेस्टोरेंट जिसकी जगह थी, ही वॉज नॉट गुड गाय, बहुत अच्छा इंसान नहीं था। तो सारे उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस भी थे वहाँ पर। तो वन फाइन डे हमने बोला कि नहीं, ये हमको नहीं करना। सेकंड फेलियर। और जब हमने विष्णु जी की रसोई शुरू किया, उसके पहले हम कई फूड फेस्टिवल्स होते थे। हाँ। तो फूड फेस्टिवल्स में हम जाते थे। मैं हमेशा कहता था कि जो लोग दे रहे हैं उससे कुछ हट के दो, ये हमेशा से मेरा ये रहा। तो फूड फेस्टिवल में इंस्टेड ऑफ रेगुलर स्टॉल लगाने से वहाँ मैं ढाबा क्रिएट करता था। हाँ, रोड साइड ढाबा। और पूरा ढाबे की थीम बना के वो ताम झाम, गाड़ियाँ, पेट्रोल पंप, ये वो सब उसके रिप्लिका बना के और ऐसे खाना बेचता था। और मजा आती थी, लोग खटिया पटिया डाल के। हाँ, अभी भी है। अभी भी है, सामने भी खटिया पटिया है। तो लोग एंजॉय करते थे। तो मतलब इस टाइप का कुछ तो हम खोलते हैं। और जो जगह थी हमारे पास में, तो वो सिटी में थी। एक तो हमने ढाबे का ही एक बड़ा ढाबा वहाँ बना है। ढाबे के साथ साथ तो मैं बोला केवल पंजाबी खाना नहीं, मराठी खाना हमको बेचना है। वो भी एक मनीषा थी कि भैया मेरा मराठी खाना भी लोगों ने खाना चाहिए, पर केवल मराठी खाने लोग नहीं आएंगे, इसलिए हमने पंजाबी खाना भी रखा। अच्छा। पंजाबी खाना लोकप्रिय है, लोग खाते हैं, मज़ा लेते हैं, तो वो भी कहीं होना चाहिए। तो रोड साइड ढाबा, उसके बाद में एक पेट्रोल पंप, ऐसा होता तामझाम। तो वो लोग देखने आते थे कि अरे सिटी में ऐसा कहाँ माहौल, पेट्रोल पंप पहले से था क्या यहाँ पे वगैरह वगैरह, ऐसा पूछते थे। तो वो होने का उस समय तक क्या हुआ था, मेरा कहीं एक नाम हो गया था। हाँ, 2008-2009 की बात है। टेलीविजन के कारण नाम अच्छा हुआ था। और फिर ये बनाने के बाद 1 साल हमने ऐसे ही रख दिया, शुरू नहीं किया। पूरा रेस्टोरेंट बनाया आपने वैसे ही रख दिया। उसके पीछे डर था, साला ये भी बंद यदि हो गया तभी नाम खराब हो जाएगा। तो ये जो सोच है ना, बंद हुआ तो नाम खराब होगा, ये सोच पूरी तरह गलत है। जो कोई लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और उनको ऐसा लगता है अरे बंद कैसे करूं, लोग क्या बोलें, लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लोगों को पैसे ना मत दो जब लोग बोलेंगे, ठीक है ना। और पैसे कब नहीं देंगे, जब अपना इनकम नहीं होगा। तो जिस प्रॉपर्टी से, जिस बिजनेस से इनकम है ही नहीं, तो खामखा उससे रखना क्यों। उससे शादी थोड़ी की हमने, हाँ, उससे शादी नहीं की ना। हाँ, बीवी है तो हम सोचते हैं कि नहीं यार इतने साल साथ में रहे, कैसे क्या तलाक ले ले। हाँ, तो बीवी थोड़ी है, वो बिजनेस है, नहीं चला बंद करो और दूसरा ये ढूंढो। उसमें ये जो हमारी मानसिकता होती है, पहले बिजनेस बंद किया तो लोग क्या कहेंगे, ये वो, उसमें आधा आदमी मर जाता है और उसको चलाते रहता है, कैसे तो भी चलाते रहता है। और फिर ये सोच उस समय हमारी थी। तो मैंने ये कहा, फिर मेरे बड़े ब्रदर जो है प्रवीण, वो एक बार चिढ़ गए, बोले नहीं बहुत हो गया, बोले नाटक, अब जल्दी तू डेट निकाल, उस समय नागपुर में रहे, चालू कर। तो बोला ठीक है, परसों से शुरू करो, भाभी का बर्थडे है 4 दिन के बाद, उस समय से चालू करो। और चालू करो तो बोल तो दिया, 20 तारीख थी और शुरू करने जा रहे थे। तो शुरू करने जा रहे थे तो एक पंडित जी आए, वो ब्रदर को कहने लगे आपका ये गलत है, बोले वास्तु, ये किचन जो आपने इस साइड से किया तो उस साइड से करो, बोले नहीं तो ये पूरा गड्ढे में है, बोले। तो मैंने कहा यार अभी तो पैसे सारे खत्म हो गए, हाँ, झोल जुगाड़ जमाते समय, अब ये आदमी फिर से बोल रहा है कि भैया ये किचन इधर नहीं उधर। तो मैंने ब्रदर को बोला भाई ये नहीं होगा, यहाँ से कमाओ, यही डालो, फिर किचन शिफ्ट कर लेंगे। और किचन शिफ्ट किया नहीं, वही किचन है, उसी साइड में है अभी तक। जो जिस दिन ओपनिंग हुआ उस समय हमने दिन देखा नहीं था, वो अमावस की रात थी। और ऐसे रात में हमने जो शुरू किया, तो अभी 7 ब्रांचेस हिंदुस्तान में और 3 ब्रांचेस हिंदुस्तान के बाहर है। किचन वहीं पे अभी। तो इस पे भी मत जाइए हमेशा, वास्तु ये वो ऑलवेज ठीक ही रहता, ऐसा नहीं है। हाँ, दिल से पॉजिटिव रहो तो आपका बिजनेस जो है तो अच्छा चलेगा। अगर चाह हो, मेहनत करो, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने वो शुरू कर दिया और अभी चल रहा है बढ़िया। हमारे उस समय डर था 1 साल का, और शुरू तो करना ही था क्योंकि कैटरिंग का जो मार्केट है, तो कैटरिंग का मार्केट ऐसा ऑलवेज ऐसे नहीं रहता, ऐसे किसी एक सीजन वाइज किसी कैटरर का नाम 8-10 साल चलता है, फिर धीमा हो जाता है, कोई नया आता है। उसके बाद में भी बैंक्वेट्स होने लगे हिंदुस्तान में, सारे बैंक्वेट हॉल, खुद का कैटरिंग, खुद का खाना, तो इसलिए आउटडोर कैटरिंग का जो फंडा था वो थोड़ा कम भी होने जा रहा था, इसलिए फिर हमने वो शुरू किया। तो एक
एक सही टाइम पे सही चीज करना बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बराबर। आई थिंक यही एक हमें मैनेजमेंट सिखाता है कि एक बिजनेस में एजिलिटी होनी चाहिए आपको, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि ये बिजनेस थोड़ा पायलट करके चल रहा है या नहीं बराबर। चल रहा है तो स्विच करो। बराबर। तो ये सभी मैनेजमेंट के ही नुस्खे हैं जो बिल्कुल, आपने एक्चुअली उस टाइम पे, जब आपने कुछ पढ़ा नहीं था मैनेजमेंट के बुक्स, बट फिर भी आपने इम्प्लीमेंट किए, तो वो एक बिजनेस एक्यूमेन कहते हैं कि वो पढ़ने से नहीं पढ़ने से आता, वो अनुभव एक्सपीरियंस, से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। बराबर। राइट। उस समय एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक उस समय हमारे लड़का काम करता था, तो होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, जोशी नाम उसका। और उसके बाद में वो एक दिन एक कार्ड लेके आया कि उसने कुछ तो टिफिन सर्विस शुरू किया था। तो हमारे पापा थे सामने, तो बोले ये कितने साल का है लड़का? तो बोला 20 साल का। तो बोला तुमने कैटरिंग शुरू किया जब कितने साल के थे? बोला 15 साल का। तो बोले आपके पास ये कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? बोला कुछ नहीं, कैटरिंग का बिजनेस ऐसा है कि उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट की जरूरत नहीं रहती। आपका काम है, आप हमको एडवांस दोगी, उस एडवांस से हम ग्रोसरी लाएंगे, कहीं से कुछ सामान लाएंगे, क्रॉकरी कटलेट लाएंगे, आपका ताम झाम सीन खड़ा कर देंगे, काम होने के बाद पैसे देंगे, जिसके उसको पैसे देके बाकी पैसे जेब में डाल के खत्म। इतना सिंपल काम है। तो बोले अभी आपका रेस्टोरेंट आपने खोला, रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, नाम हो रहा है, तो फिर कैटरिंग की जगह छोड़ दो बोले अभी ऐसे लोगों के लिए। अच्छा। हाँ, तो हम सोचने लगा, मतलब बात तो बराबर है। बोले कितने दिन आप क्योंकि कैटरिंग में बहुत मेहनत होती, बहुत मेहनत, ढोर मेहनत होती, और हमने की है। माने रिक्शा चलाने से लेके सामान ढुलाई तक सब हमने किया। तो फिर वन फाइन डे हमने तय कर लिया, जहाँ जहाँ हमारा कोलैबोरेशन था वो सब बंद किया, और कैटरिंग 1 साल के अंदर बंद करके पूरा बिजनेस आदित्य को सौंप दिया, और फिर वो अभी अच्छे से कर रहा है। क्या बात है। तो ये एक होता है कि एक बिजनेस में सीख लेने के बाद किसी दूसरे को तैयार करना, बराबर। तो वो एक काम अपने आप हुआ जिसके लिए आपने कुछ सोचा नहीं, लेकिन अब जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ही बिकेम अ कोच, ही बिकम अ मेंटर, राइट। उस हिसाब से अभी आपको लोग देखते हैं, बट उस टाइम पे वो जो फीलिंग होती है कि किसी को दूसरा उभरते हुए देखना, बराबर, वो एक अलग बात है, और वो सारे है। लोग नहीं कर पाते। नहीं, पर करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब बड़ा बनते हो ना, अकेले नहीं बनते, अकेले के भरोसे नहीं। ठीक है, आपकी सोच विचार अलग है, पर वो सोच विचार कंप्लीट करते करते अगल बगल के लोगों की जरूरत होती है। हाँ। और वो अगल बगल वाले लोग यदि नहीं है साथ में, आप बड़ा नहीं बनोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप साइकिल से लेके स्कूटर तक जाते हो ना, तो आपके आदमी के पास स्कूटर आनी चाहिए या साइकिल आनी चाहिए। स्कूटर से आप थोड़ी होंडा गाड़ी लेते हो, मारुति गाड़ी, तो उसके पास स्कूटर आनी चाहिए। बड़ी गाड़ी जाते हो तो छोटी गाड़ी एटलीस्ट उसके घर में आनी चाहिए। तो इसलिए सबको लेके साथ में लेके चलो। सब बड़ा घर है आपका, उसका छोटा घर एटलीस्ट होना चाहिए, ये सोचो। अपार्ट फ्रॉम आप उसको मंथली दे रहे जो भी है, तो ये सोच यदि रखी तो ऊपर वाला सबको देता है। हाँ, शायद इसी वजह से आप यहाँ पे भी जब आते हो तो जो भी नया रेस्टोरेंट खुलता है इस शहर में, आप वहाँ पे पहले कस्टमर हाँ, होते हो जब भी आप आते हो। मुझे खुद को पता है कि अपने यहाँ पे कितने रेस्टोरेंट में जाके कितने लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दिए और उनको बिजनेस टिप्स भी दिए। बराबर। तो ये जो है, ये सब में आने के लिए, या फिर आप जब आपके लोग तैयार करते हो, तो उसके लिए आप क्या स्पेशल ऐसा करते हो कि जिसकी वजह से लोगों को ये सीख मिलती है, और या ये मैसेज बहुत ही इनके हृदय तक पहुंचता है कि यही काम हम आगे जाके, ये एक काम तो करना ही करना है, बाकी सब नहीं किया तो भी बहुत कठिन है कंपटीशन में सस्टेन होने के लिए। नहीं, कंपटीशन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप ओरिजिनल हो तो आपका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। ओरिजिनलिटी, आपकी स्माइल ओरिजिनल है, किसी की ली नहीं है। हाँ। तो ये आप आपके जैसी ही हंसोगी, वो नहीं हंस पाएगी। बात ऐसी है, यही काम का तरीका है। आपका काम ओरिजिनल है, आपकी एक विचारधारा अलग है, उस हिसाब से आप काम करते हो, तो उस विचारधारा के कारण लोग आपको पहचानते हैं, आपके काम का कारण लोग पहचानते हैं आपको, और उसके लिए आपका नाम होता। तो उसी विचारधारा, उसी काम को यदि दूसरा कोई लेता है तो बोलेंगे नहीं यार, विष्णु का जो ओरिजिनल है वही अच्छा है, वो दिनेश का जो है वो नहीं। तो दिनेश ने अपना अलग रास्ता चुनना चाहिए। और ये जब सोच मन में है कि भैया हमारा एडिटर है नहीं, तो वो सोच आपको अलग अलग रेस्टोरेंट्स में ले जाती है। मैं जाना ही है, जाता ही हूँ, सभी की तारीफ कर, माने जिसकी तारीफ करना है उसी की करता हूँ। हाँ, ऐसे नहीं, सभी की तारीफ करता हूँ। उसमें कुछ खामियां हैं तो बताता हूँ। कुछ लोग सुनते, कुछ नहीं सुनते, तो सुने ना सुने,
काम अपना है, इतने साल से इस फील्ड में है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान दे देना उनको कि भैया ऐसे से ऐसा हो सकता है, सोचो। सो जब कैटरिंग का बिजनेस तो आपने काफी साल तक बंद किया था, बट नागपुर में एक इवेंट हुआ जहाँ पे आपने खुद से बराबर कैटरिंग का स्वीकार किया जी। और वो इवेंट आपने कैटर किया। बराबर। क्या था वो इवेंट? वो G20 नाम की एक कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ से कितने अलग अलग 30-32 देशों से लोग आए थे, और नागपुर उसका होस्ट था। तो उनको एक गाला डिनर देना था कि नागपुर की संस्कृति और खान पान के बारे में सब बताना था। तो जब ये हुआ ऐसा, तो लोग आए मेरे पास नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से कि भैया ये काम आपको करना है और प्रेस्टिजियस है, इसलिए मैंने लिया वो, और कंप्लीट हुआ तक 97 आइटम्स थे उसमें। वाओ। हाँ, और 550-600 लोग थे, काम करने के लिए 280 लोग थे। वाओ। हाँ, इतना वो चाहिए और अलग अंदाज में खाना था, तो ऐसे काम में मजा आता है। तो ये रहा कैटरिंग का सिलसिला। उसके अलावा कुछ आपने फूड फेस्टिवल्स क्रिएट किए जी। उसके पीछे भी बहुत अलग अलग अंदाज की स्टोरी है। बराबर। और उसके साथ आपने अचानक वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चालू किया। बराबर। और फिर विष्णु जी एक नए अंदाज में पेश आए। शुरू में जो कैटरिंग का काम करते थे, फिर रेस्टोरेंट, फिर आगे जाके टीवी पे आने की मनीषा, फिर टीवी पे आ पहुंचे, उसके बाद खाना सिखाने लगे और फिर बुक्स आए। मतलब बहुत कुछ चीजें होती गई एक से बाद एक। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये जो फूड फेस्टिवल है, इसका क्या अंदाज था? ये देखिए, जितनी बातें अभी आपने गिनाई ना, ये कोई भी तय करके नहीं था। ये खाली तय इतना ही था की मेरे को कुछ अलग मुकाम पर खुद को ले जाना है, मला कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी स्वतःला नेऊन जायचं आहे। तो वो एक मनीषा मन में थी, एक सपना था, वो करने के पीछे ये सारा अपना हो जाता है। हाँ, तो उस समय देखिए, अब जैसे पैसे तो कभी नहीं थे मेरे पास, हाँ, कि एम्पल अमाउंट पड़ा है और उससे काम, क्योंकि खुद को संवारने में, बनाने में, घर को संवारने में ही पैसे लगे, नाम करने में ही पैसे मेरे लग गए। तो उस समय एक फूड फेस्टिवल किया। फिर फूड फेस्टिवल इसलिए किया कि मेरे यहाँ मेरठ से बंदे आते थे काम करने के लिए, रोटी वोटी लगाने के लिए। तो वो थोड़े कलाकार टाइप के लोग थे, क्योंकि खाना बनाना अपने आप में एक कला है। तो अलग अलग टाइप के पराठे, तंदूरी आइटम बनाते थे। तो एक रूम में वो हमेशा रहते थे। तो मैं बोला, क्यों रे, गए नहीं, सीज़न तो ख़त्म हो गया? नहीं, बोले जाके फ़ायदा नहीं, बोले वहाँ भी कुछ काम नहीं है, आने जाने में खर्चा हो जाएंगे, तो अभी हम यहीं बैठेंगे 1.5-2 महीना। बोला करेंगे क्या, खाएंगे क्या? बोले ऐसे ही। बोला रुको यार, ऐसा मत करो, क्या क्या आता है आपको? तो उन्होंने बताया मेरे को। बोला जो रेगुलर रोटी बनाते उसके अलावा क्या आता है? तो उन्होंने कहा कि हमको यही आइटम आते हैं। तो बोला चलो हम एक फेस्टिवल करते हैं। और मैंने फिर उनको साथ में लेके एक पराठा फेस्टिवल का आयोजन किया। और रोटी, पराठा, नान, भाकर, जो भी रोटी टाइप के आइटम है सब उसमें इन्वॉल्व किया। तवा आइटम। हाँ, तवा आइटम। और जब ये फेस्टिवल चालू किया हमने, तो उसका प्रोपोगंडा करने के लिए, उसकी एडवर्टाइज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो हमारे एक मित्र थे, मनीष अवस्थी, वो आज तक के ब्यूरो चीफ थे वहाँ के। उस समय ज़्यादा चैनल, न्यूज़ चैनल वगैरह थी नहीं, 2-4 चैनल थी। तो बोला मनीष यार, इसको चमकाना है। बोले ऐसे नहीं चमकेगा, कुछ तो रिकॉर्ड बना, बोले इसमें बड़ा पराठा, बड़ी रोटी। तो बोले उस बहाने ये लोगों को पता चलेगा। तो फिर मैंने ढूंढा कि बड़ा पराठा कहाँ है। उस समय तो इतना कंप्यूटर वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ही नहीं था। फिर जैसे ढूंढना मैंने, तो कोई था नहीं ऐसा। तो फिर 5 फीट बाय 5 फीट का मैंने पहले पराठा बनाया। और पराठा जब बनाया, पराठा बनाने में भी बहुत दिक्कत आई। और वो अचानक से नहीं हुआ, उसकी भी 15-20 दिन प्रैक्टिस हमने किया। और पराठा देखने लोग आएंगे इससे फिर वो सीन जो है पूरा क्रिएट किया। और हुआ वही कि पराठा का वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना। फिर उसको हमने लिम्का में दर्ज कराया। और ऐसे फिर फेस्टिवल की शुरुआत शुरू हुई। फिर बड़ा पराठा, बड़ी पूरन पोई, बड़ा कबाब। वो तो 8 फीट लॉन्ग, माय गॉड। ऐसा सारा ही हुआ। फिर उसके बाद कितने टन मिसल? हाँ, तो ये सिलसिला अचानक 2009-10 में बंद हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ ही नहीं, क्योंकि मेरा वो
ये था ही नहीं कि अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए और ऐसा करें। और फिर बाद में शादी वादी भी बीच में हो गई। फिर लड़का है तो हर बच्चे को, मेरा लड़का जो आदिनाथ, सबको लगता था कि मैंने तेंदुलकर बनना चाहिए, गावस्कर बनना चाहिए। उस समय वो क्रिकेट के चक्कर में था। तो उसने अपने मम्मी को बोला कि गावस्कर तेंदुलकर इतने रिकॉर्ड बनाते हैं तो मेरे बाबा भी तो कुछ बना सकते हैं, बोले उनको बोलो रिकॉर्ड बनाओ। बोला काय का रिकॉर्ड बनाओ? बोला ठीक है यार, बेटे के लिए कुछ करे। तो फिर मैंने देखा बेंजामिन पेरी नाम का एक शख्स था अमेरिकन, उसने लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन किया था। तो बोला ठीक है, नॉन स्टॉप कुकिंग हम भी कर लेंगे। मेरे को लगा कि 15-20 घंटे का किया होगा, देखा तो 40 घंटे का किया। 40 घंटे। तो बोला ठीक है, 40 घंटा लगातार। तो मैंने कहा कि ठीक है अपन 45 करेंगे। फिर कोई बोले नहीं 45 क्यों, 50 करो। फिर बोला चलो 51 करेंगे। ऐसे करते करते वो 54 आवर्स का, 52 का 53 आवर्स का रिकॉर्ड हुआ। और वो रिकॉर्ड हमने किया। तो वो रिकॉर्ड जब हुआ तो उसके बाद में फिर ऐसे चस्का लग गया ऐसे टाइप का कि हाँ नहीं अभी अलग कुछ बनाते हैं। तो फिर बड़ी कढ़ाई में 5000 किलो खिचड़ी, 8000 किलो मिसल, उपवास की खिचड़ी, हलवा, ऐसा ऐसा बनाते बनाते 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए अलग अलग। तो अभी हम कह सकते हैं हम वल्लभाचार्य जी के साथ बैठे हैं। महाभारत के समय में भीम जी ने एक वो रूप लिया था, तो वो एक मिनी वल्लभाचार्य रूप हम एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस युग में। तो अभी इतने सारे रिकॉर्ड होने के बाद आगे कोई रिकॉर्ड का क्या अंदाज है? इसके बाद रिकॉर्ड अभी मैं मिलेट्स के ऊपर इस साल पूरे सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हर जैसे 12 महीने हैं तो ये मिलेट्स ईयर डिक्लेयर किया मोदी जी ने। तो मैंने कहा कि चलो 12 टाइप के मिलेट्स जो है हर शहर, 12 शहरों में 5-5 हज़ार किलो मिलेट्स बनाते हैं। तो उसमें से 2 शहर तो हो गए, नासिक हो गया और रोमाद हुआ, और अभी बाकी 10 शहरों में मिलेट्स में बनाऊंगा। ये तो होगा हिंदुस्तान में। और अभी मैं अगले साल एक विचार कर रहा हूँ कि वो मैंने जो रिकॉर्ड बनाया था उसको हमारे यहाँ के ही इंडिया के एक लेडी ने तोड़ा, लता टंडन जी ने 88 आवर्स या 87 आवर्स का कुछ तो नॉन स्टॉप कुकिंग किया। उसके बाद में उसका रिकॉर्ड कुछ एक नाइजीरिया की हिल्डा जी ने तोड़ा। वो 93 या 92 आवर्स का उसने खाना बनाया। 93 आवर्स 11 मिनट्स। हाँ, तो मैंने कहा कि चलो इनको भी तोड़ दे। अब 100 घंटे का रिकॉर्ड मैं अमेरिका में बनाऊंगा। बढ़िया है। तो अगले साल उसका प्रयोजन चल रहा है, तो देखो ऊपर वाला है सक्सेस देगा। हम जरूर आशा करते हैं कि आपका ये रिकॉर्ड सफल हो और आपके साथ कई हाथ इसमें जुड़ने चाहिए। बिल्कुल। तो हम ये अपील करते हैं, आपकी भी मदद लगी मेरे को। जरूर जरूर। तो इस चैनल द्वारा, इस शो द्वारा हम अपील करते हैं कि ये विष्णु जी का रिकॉर्ड जो अमेरिका में इंडियन खाने का, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कैसे रहेगा, ये शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन या मराठी खाने को बढ़ावा देने के लिए, मराठी लोगों के लिए किया हुआ, मराठी आदमी ने किया हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा मैं ये करता हूँ। और रिकॉर्ड बनने के बाद हमारे जो किसान भाई लोग हैं तो ये सारा समर्पित हम किसानों को करेंगे, हिंदुस्तान के या सारी दुनिया के किसानों को समर्पित करेंगे। बढ़िया है। तो किसानों से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपने कुछ और भी अलग अंदाज से किसानों के घर के बच्चों के लिए, स्पेशली जो महाराष्ट्र में वेस्ट कोस्ट विदर्भ साइड के बहुत सारे किसान जो बीच में सुसाइड कर रहे थे, उनकी कई फैमिलीज ब्रोकन थी, उनके बच्चों का वहाँ पे ड्रॉप भी चल रहा था, हवामान और उस समय की वजह से बहुत सारी चीजें कंडक्टिव नहीं थी, तो उन बच्चों का खाना ही नहीं हो रहा है वहाँ पे, वो सीखेंगे क्या? तो उसके लिए आपने कुछ अलग प्रयोजन या आपका काम चलता है, तो वो क्या है? वो देखो, मैत्री परिवार नाम की एक संस्था है हमारी और चंदू जी पेंट के उसके संचालक हैं। तो उनके साथ मिलकर इन सारे बच्चों को हमने शहर में लाया, उनको खाना खिलाया। खाली खाना नहीं खिलाया, उनको कपड़े लत्ते, स्कूल, और ऐसा करते करते अभी 4-5 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। और अभी 65 से ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ रहे और ये सारा काम करते हैं, तो मज़ा आता है। 2 बच्चे मेरे घर में ही खुद मैंने लाया, क्योंकि अभी जगह नहीं थी तो उनको घर में रखा। सही है। तो मतलब कोई एक टाइम था जिसके लिए आप
ऐसा छत ढूंढ रहे थे, बट जी। अभी आपने ऐसा छत क्रिएट किया है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग बराबर। आके अच्छे से रह पाते हैं। बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए, कुकिंग रिलेटेड तो सारे जो भी आप नाम कहो वो प्रोजेक्ट आपने लिया है। उसके बाद आपने कुछ अवेयरनेस के प्रोजेक्ट्स किए, जैसे रेस्टोरेंट्स में टॉयलेट क्लीनिंग, हाइजीन मैटर, जो बहुत ही ओवरलुक्ड एरिया होता है जी। उस एरिया से लेके बाकी और भी रिलेटेड एरियाज में आपने काम चालू किया। पॉलिटिकल पार्टीज जो आपके पास खाना खाने आते हैं उनके साथ आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट चालू किए, तो उसका प्रयोजन या उसकी मनीषा क्या थी, कैसे चालू हुए, और इतना डेडिकेटली उसके लिए, मतलब वो एक मैसेज स्टैंड आउट करने के लिए कुछ और बड़ा काम लेना, कुछ और मेहनत करना, और ये कुछ नॉन स्टॉप सिलसिला चलता रहता है, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? नहीं, बेसिकली मैं यदि बिजनेसमैन नहीं होता था, मैं कुकिंग शो नहीं करता था, तो मैं फुल टाइम समाज की सेवा करने में पूरा लगता था, प्योरली सोशल वर्कर होता था। बट एक वाकया ऐसा हुआ कि उस समय मेरा मन उब गया उसमें से। सबसे पहला मैंने जो किया, थोड़े पैसे आने लगे, तो मैं बोला कि चलो अचानक उस दिन, उस समय राजस्थान गुजरात जो एरिया था, पानी नहीं आया था वहाँ पे, तो मैंने 15-15 फीट के गाय ढोरों के ऐसे हिप देखे जो मरे हुए बगैर पानी के। और उस समय ऐसी भी स्थिति देखी कि लोग अधमरा जानवर लेकर झाड़ में लटका देते थे ताकि ऊपर ही ऊपर गिद्ध उसको खा ले, इस टाइप के। और ऐसी बहुत ही उसमें ये थी, तो मैं मेरे 2-3 लोगों को लेके गाड़ी लेके, और 1.5-2 महीना हमने रास्ते में सोकर लोगों की हेल्प किया, टैंकर्स कहीं से जुगाड़ करके पानी पहुंचा, ये किया वो किया। उसके बाद में क्या हुआ कि नेक्स्ट कुछ सालों बाद वहाँ पे ये हुआ, अर्थक्वेक आया भुज का। तो उसमें मेरे को गवर्नमेंट ने बुलाया कि भैया आप समन्वयक बनो, गवर्नमेंट से जो हेल्प आती है वो बराबर तरीके से लोगों तक जाना चाहिए। तो वो काम करते करते मैंने देखा कि भैया, मैं एक कोई सेठ है, अग्रवाल सेठ, उनके यहाँ काम करने वाला कोई नौकर है, अब दोनों बेघर हो गए, दोनों के पास पैसे नहीं है। उसके बावजूद जब जमीन देते समय या घर बांटते समय उनको अगल बगल में घर दिया, तो वो बोलता नहीं, मैं मेरे नौकर के घर के बाजू में नहीं रहूँगा। तो वो कहीं तो जमा नहीं, बोला क्यों कर रहा हूँ मैं, किसके लिए कर रहा हूँ। और फिर पॉलिटिकल लोगों का भी एक अलग एक्सपीरियंस आया उस समय, तो मैंने कहा कि नहीं, दिखाने वाले दांत अलग हैं और खाने वाले दांत अलग हैं, तो मेरे से नहीं होता, मैं सब छोड़ छाड़ कर दिया फिर। और फिर वो कीड़ा तो था ही, फिर जैसे होता बोला डायरेक्टली हेल्प करो किसी को भी, उठा के पैसे दे दो, दिख रहा है अपने को, उसने खर्चा किया, उसका घर बना, उसने खर्चा किया, उसकी शादी हुई, उसने खर्चा किया, उसका और कुछ हुआ। तो इस हेल्प में मैं बिलीव करता हूँ। कभी मंदिर को दान दक्षिणा नहीं करता मैं ज़्यादा, और इस टाइप के कुछ काम कर लेता हूँ, तो वही सिलसिला आगे चल रहा है। और हमेशा मैं सबको कहता हूँ कि भैया आपको 2 मिले ना, 2 में से 20 पैसे तो आप किसी को दे दो, ज़रूरत है उसको, क्योंकि अपनी ज़रूरत तो क्या, 3x6 की एक गद्दी, खाने के लिए 2 रोटी, 1 रोटी, चावल दाल, और क्या, इससे आगे क्या नहीं, क्या तो हो गया वो। चावल दाल की बात आई तो वो जो खिचड़ी का प्रयोजन था, तो बहुत ही लाइक कि स्कूल में खिचड़ी एक मील होना चाहिए या नेशनल मील करके इसको घोषित किया जाए, उसके वजह से वो रीजन के लिए आपने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद भी कई सिलसिले हुए पराठे के बारे में, फिर कॉन्स्पिरेसीज हुए कि अभी टीचर्स को बनाना पड़ेगा। तो ये सब खिचड़ी का जो चक्कर था, तो खिचड़ी मैंने देखा सबसे अच्छा स्टेपल फूड है, सबसे सस्ता है, और हमारे खानदेश में हर रात का खाना खिचड़ी होता है। अच्छा। हाँ, खिचड़ी सब घर घर में बनती है, अलग अलग टाइप की बनती है। कड़ी खिचड़ी ऐसा है कि उनका मेन्यू होता है। तो ये खाना यदि अब जैसे पिज्ज़ा किसी एक देश की ये करता है, और कोई चाइनीज़ फूड या जो भी है
किसी देश को सामने, तो हमारे यहाँ का ऐसा कौन सा खाना है या कौन सी डिश है कि हमारे उस डिश के कारण देश का नाम लिया जाए। तो खिचड़ी जो है राष्ट्रीय अन्न घोषित करे, इसलिए हमने किया था ये प्रयास। पहले नागपुर में किया, फिर जंतर मंतर मैदान दिल्ली में किया। हाँ, उसको समरसा खिचड़ी नाम दिया। हाँ, घर घर से दाल चावल इकट्ठा करके वो खिचड़ी बनाई। तो ऐसे वो खिचड़ी बनाई, पकी, खाई, बांटी लोगों ने। तो ऐसे सब प्रयास मैं कर रहा हूँ। और सभी एक काम आपका एक अलग अंदाज में आप पेश करते हो, कुछ अलग लेके आते हो हर एक प्रोजेक्ट से। जो मास्टर रेसिपीज है उसमें भी अगर देखा जाए तो वो जो टिप्स नुस्खे होते हैं, या उसके साथ वो जो बर्तन, अभी ये बर्तन आप देख रहे हो, वो फिर मेंटेन कैसे करना है, तो मेंटेन करना कितना आसान हो सकता है। तो उसके लिए फिर जो काम अभी जो कारागिर अभी है नहीं, हाँ, तो वो खुद कारागिर कैसे होना, ये वाला अलग अलग ही अंदाज है सबका। स्वीट डिश में रोज का कुछ अलग फ्लेवर डाल के क्या अलग हो सकता है, वो सब लेके आना। एक आर्टिस्टिक नजरिया आपके घर में ही था जो आपके काम में भी आया। सारे काम आपके अलग अंदाज में होते हैं। कुछ चीजें नहीं होती तो आप उसको पैदा कर लेते हो। बराबर। जैसे कि वो जो बड़ी वाली कढ़ाई, वो इंजीनियर सच में पैदा किया मैं, क्योंकि जब वो कढ़ाई मैंने ठान लिया था कि इतनी बड़ी कढ़ाई चाहिए, उस हिसाब से डिजाइन हो लेना, तो अचानक वो बोले मेरे को नहीं बनाना। तो हमारे एक मित्र हैं मिस्टर पई, तो उनको बोला, यार दोस्त था हमारा, तो बोला ऐसी ऐसी अड़चन आई, प्रॉब्लम है, तो यार वो करवा ले। बोले यार, वो इंजीनियर था खुद, पर उसने करवाया। और बड़ी कढ़ाई का क्रेडिट जो है वो मिस्टर पई को जाता है, कोल्हापुर। क्या बात है। तो अभी क्या वो कढ़ाई हमें देखने मिलेगी अमेरिका में? अमेरिका में देखने मिलेगी क्या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ के लॉज टोटल अलग है। पर कोशिश जरूर करूंगा मैं कि कढ़ाई में जहाज से यहाँ लाऊं, कुछ खाना बनाऊं, अमेरिकन को खिलाऊं और उसको वापस हिंदुस्तान भेज दूं। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, ऐसा होता है। आप यदि यहीं से गिव अप करोगे कि नहीं भैया यहाँ के लॉज अलग है, मिलेगी कि नहीं, अरे आप जाओ तो देखो, तो सिटी से बात तो करो कि ऐसा होता है क्या। क्या मालूम बाइडन खुश हो जाए, बोले बनाओ खाना। खाना खाने भी आ जाए व्हाइट हाउस में, आपको कढ़ाई लेके बुला भी ले, बढ़िया है। आई मीन ये एक मुझे आपको दिखती है कि गट फीलिंग, एजिलिटी और करने की चाह, चाहे कुछ नहीं हो, करने की चाह है तो वो सब एनवायरनमेंट बन जाता है, वो पूरा माहौल खड़ा हो जाता है। आर्टिस्ट के साथ साथ आपकी माँ बहुत अच्छे से गाती थी, शी वॉज अ सिंगर, ट्रेन सिंगर रही, ग्वालियर घराने की, और आप में भी वो थोड़ा अंश थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। वो माशा गाती थी, मैंने गाना गाना चाहिए, इसलिए उसने मेरा नाम विष्णु रखा, क्योंकि विष्णु दिगंबर पलुस्कर बहुत बड़े गायक हो गए। मेरे पापा का नाम दिगंबर था, तो मैं विष्णु दिगंबर मनोहर गायक नहीं खायक बन गया। ऐसे बोल। बट फिर भी ये खवैया गाते हैं, और अगर आपके पास एनर्जी है, क्या हम आपको ये प्लेटफॉर्म पे कुछ सुन सकते हैं आपका? एक 4 लाइनें सुनाता हूँ। जरूर। कैलाश खेर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, सूफी टाइप का गाना गाते हैं। तो उन्होंने गाना लिखा है ये, और उनके जब पापा चल बसे उस समय उन्होंने गाना लिखा। तो कह रहे थे कि मेरी मम्मी मेरे पापा को ऊपर स्वागत कैसे करेगी, ऐसा वो उसकी कुछ कहानी है। तो वो कहते हैं, होरी सखी मंगल गाओरी, होरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। होरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। रश्मि जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। ऐसा है वो, बहुत ही माने आंखों में आंसू लाने लायक ये सॉन्ग है, बड़ी मजा आती है।
नहीं, उनके गाने तो बहुत ही बढ़िया, मैंने उनका कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस किया ओह, है। क्या बात है। इट कम्स ऑन अ हार्ट। नहीं नहीं बिल्कुल, बड़े लोग जितने बड़े होते उतने सिंपल होते, और हम कभी कभी खुद को अंडर एस्टिमेट करते। परसों का एक वाकया बताता हूँ मैं। ऐसे ही किसी यहाँ के रेस्टोरेंट में मैं गया था, और स्वराज, हाँ मराठी रेस्टोरेंट है, हाँ, तो बहुत नाम सुना था, मतलब चलो जाके आना चाहिए। क्या करते बच्चे ही है वो मेरे सामने, और वो नागपुर के ही है। नागपुर की है, और छोटा मेरे ख्याल 35 साल का होगा। बोला चलो चलते हैं, और जाके हम वहाँ पे गए तो 10-12 लोग ऐसे बैठे थे, फुल था रेस्टोरेंट। मैं बोला, देखा तो जाकिर जी बैठे थे, क्या तो हमने ऐसे ग्रीट किया, मतलब क्यों डिस्टर्ब करना, बड़ा आदमी है। जाके साइड में बैठ गए। अच्छा, मैं बैठा साइड में, तो वहाँ से एक बगल वाला टेबल आया, उन्होंने पूछताछ की, फोटो निकाल लिया। एक दूसरा टेबल आया, वो आया, उसने पूछताछ की, उन्होंने फोटो निकाला। फिर ओनर गणेश, वो भी बातचीत करने लगे। फिर उन्होंने मेरे ख्याल से गणेश को पूछा कि भैया ये कौन है, तो गणेश ने बताया कि ये ऐसे ऐसे मास्टर शेफ है विष्णु मनो। अरे बोले विष्णु जी है, मैं जानता हूँ बोले उनको। और वो खुद वहाँ से उठ के चल के मेरे पास आए। क्या बात और है, चल के, खाली चल के नहीं आए, मेरे को झुक के नमस्कार टाइप का किया, हाथ में लिए, चूम लिए, माथे पे रखे, और बोले ये जो नमस्कार है आप में के जो अन्नपूर्णा है उसको है, बोले आपको नहीं। क्या बात तो ऐसे सब भगवान की दया, ऐसे लोग मिल जाते हैं। सो ये तो बिजनेस सक्सेस, करियर वाइज सक्सेस तो आपको मिला, उसके पीछे आपके फैमिली का सपोर्ट बहुत ही बढ़िया था, है अभी तक, जो इतने टाइम से आपको यहाँ वहाँ घूमने के लिए जा रहे हो, इतना सारा आप काम कर रहे हो। तो एक बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एज अ पेरेंट, एंड स्पेशली जो करियर में बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, या फिर उनको बहुत ट्रैवल होता है करियर में, लाइक आपके फील्ड में नहीं, बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे पेरेंट्स, कई बार मदर्स होती है, कई बार फादर्स होते हैं, दे कीप ट्रैवलिंग एंड दे डोंट गिव इनफ टू देयर किड्स, तो वो एक पिंच हमेशा होता है। बराबर है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। पर उसकी परिणति थोड़ी अलग हुई। बच्चे से हमेशा दूर रहा, माने लड़का मेरे को दूर दूर से हमेशा, मैं आने के बाद शर्माता था, और वो बोलता था कि आई विष्णु जी आले, क्योंकि टीवी में ही देखता था और मेरा नाम टीवी पे विष्णु जी था। तो मेरे को विष्णु जी बोलता था वो। और फिर ऐसे करते करते 10वीं में आया, मेरा घूमना ट्रैवलिंग तो शुरू ही था। तो एक बार अचानक रूम में मैं जा रहा था, दरवाजा बंद था, और मैं उनकी मम्मी और वो उस तो भी उनकी बातचीत चालू थी। मम्मी रोने टाइप का आवाज़ था, और कह रहे कि अरे आदिनाथ, कभी तो मेरे को ऐसे एक प्राउड फील होने दे, आपके टीचर के सामने जाऊं मैं। तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो उस समय इसकी प्रीलिम्स चल रही थी 10th की, और उसको 20 में से 2 मार्क मिले थे गणित में। Oh my God. और मैं बोला यार ये गलत था। 105 किलो वजन था उसका उस समय। हमेशा फ्रिज खोला के खाओ, ऐसा उसका स्वभाव था। तो ठीक है, मैं उसको बोलने लायक कोई हो नहीं, मैं भी वैसी हूँ। तो पर बोला यार ये गलत है। तो मैंने उस समय ठाना कि अभी इसकी एग्ज़ाम नहीं होती तब तक अपन कहीं नहीं जाएंगे, और इससे अपन पढ़ाई करवा लेंगे। और फिर मैंने बोला चलो सबसे पहले भावना को हाथ डालो, उसके दिल में जगह पैदा करो खुद के लिए। मैंने एक 2-3 पेज का लेटर हाथ से लिखा, और उसको सब बताया मैंने कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया, मेरे पास पैसे थे नहीं थे, कैसे हुआ, और हम कुछ नहीं कर सकते थे, आपको सब कुछ अवेलेबल है, जो टीचर चाहिए वो टीचर है, जो क्लास चाहिए वो क्लास है, इसके बावजूद भी आप ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उससे वो लेटर पढ़ा। तो मैंने बोला पढ़ा क्या? पहले बार तो बोले नहीं पढ़ा, बोला पढ़। फिर दूसरी बार पढ़ लिया था। पढ़ने के बाद में बोला दे दे वापस, बोले नहीं मेरे को नहीं देना। बोला मम्मी को बता, नहीं बोले उनको मत बताओ लेटर। हाँ ठीक है। और फिर एक बार ऐसे देखा तो चुपके से वो फिर से पढ़ रहा था लेटर। वो लेटर उसके पास ही पढ़ा है वो अभी भी। पर उसकी परिणति ऐसी हुई कि 10वीं में 87% मार्क। उसके बाद में कोविड था, तो कोविड में उससे मैंने वर्जिश करवाया, और वेट उसका एकदम 87 किलो ऐसा वेट, और अभी बॉडी बिल्डर है। हाँ, उसकी हाइट भी काफी हाइट अच्छी, भी 6 फीट 2 इंच हाइट हो गई उसकी। क्या बात है। तो मज़ा आता है ऐसा देख के कि बच्चे। और फिर उसको होटल मैनेजमेंट भी करना था, और वो होटल मैनेजमेंट कर रहा है।
क्या उसको बात बोले है। मैं शेफ तो ओरिजिनल मैंने हूँ ही, मेरे को अच्छा ही लगता है, बट जो मैं सीखा नहीं वो सीखूंगा, मैं मैनेजमेंट कैसा करते हैं वो सीखूंगा। और उसको देसी खाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको एक 5 स्टार ब्रांड खोलना है, तो मैं उस हिसाब से भी थोड़ी सी तैयारी करके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारा दूसरा बेटा, मैंने दूसरे भाई का जो बेटा है वो आर्ट फील्ड में चला गया, वो राइटर है। क्या बात है। वो पहले कमेंटेटर था, उसके बाद में वो स्टैंड अप कॉमेडियन बना, यही था, अमेरिका में ही था वो, और उसके बाद में इंडिया में अभी नेटफ्लिक्स के लिए काम करता हूँ। क्या बात है। तो वो इस फील्ड में नहीं आएगा। चलो कोई तो बैटन लेके कोई आगे तो है, बढ़ना हाँ, चाहिए। क्या बात है, बहुत ही खूब। तो ये सब तो फैमिली और वो सब सिलसिला रहा, उसके बावजूद लाइक आपको बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपको ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मिलते हैं तो उनके कुछ किस्से, लेकिन मैं अभी पूछना चाहूँगी कि आप बहुत सारे ऐसे भी नॉर्मल लोगों को मिलते हैं जो कहीं हाइलाइट्स में नहीं है, लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन हर एक से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। बराबर। तो कोई एक किस्सा ऐसे बता दीजिएगा जो एकदम नॉर्मल से लाइफ से आपको मिला और वो एक आपके लिए लाइफ टाइम तक सीख कहते हैं, या फिर जो एक क्लोज टू हार्ट मैसेज करते हैं, हाँ। कहते हैं, वैसे कुछ आपको किसी से मिला, कोई भी हो, शायद आपका कारागिर हो, आपके घर में काम करने वाले हो, या आप इतने फेस्टिवल्स में काम करते हो, कोई भी हो सकता है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने इसके पहले ऐसे, कोई भी छोटा आदमी है ना, तो वो कुछ ना कुछ सिखाता है, किसी को कम मत समझो, उसकी उतनी अहमियत है उस आदमी की। हमारे डेकोरेशन का काम करते थे, तो उस समय एक ऐसे पीने वाला आदमी हमेशा बैठे रहा, काम नहीं करता था ज़्यादा, तो वो ऐसे पल रहा था, ऐसे समझो। हाँ। और मैं हमेशा उसको, चल निकल यहाँ से, इस टाइप की बात, मैं या सभी लोग ऐसा करते थे। तो जिस समय हमने पराठा बनाया था, तो पराठा क्या, एक लेवल पराठा पहले पराठे का आटा लगाना, बेलना, ये पहला टास्क, बेला हुआ पराठा फोल्ड करके तवे पे डालना, फिर से उसको लाइन अप करना, दूसरा टास्क। और तीसरा और बड़ा भयानक टास्क, पराठा बनने के बाद उसको टर्न तो ये टर्न नहीं होता था हमसे, क्या करे। तो एक बार वो ऐसा जा रहा था, अरे क्या हो, बोले सिंपल सा काम है, बोले उसके नीचे एक पटिया डालो, बोले प्लाईवुड डालो, पलटा दो, बोले उससे बोलते से ऐसे बोल के निकल गया। उसने सिंपली बोल तो दिया, पर बोला नहीं, ये लॉजिक अच्छा है कि इसके नीचे प्लाईवुड डाल सकते हैं हम। तो हमने क्या किया कि बोला पराठा बनने के बाद ज़्यादा सिका है तो जल जाएगा, इसलिए पतली प्लाई, बोला पहला देख लिया, पराठा सीख गया, पतली प्लाई हमने अंदर डाल दी, बोला पराठा से। क्या बात फिर है। दूसरी एक पतली प्लाई उसके ऊपर डाला, उस पर 2 क्रॉसिंग पट्टी लगाए, नट बोल्टिंग किया, टर्न किया, पराठा पलट गया। क्या बात है। तो इतनी सिंपलिसिटी थी उसमें, हाँ। पर वैसे हमको नहीं आ रही थी, हमने डेवलप की, बट कारण वो बन गया, उसने बताया। ऐसे कई सारे अलग अलग किस्से होते थे। राइट। तो किसी को कभी कम मत समझो। विष्णु जी, बहुत सारे अच्छे किस्से, बहुत अच्छी स्टोरीज है आपकी, जो इट इटसेल्फ इज अ मैनेजमेंट बुक फॉर समवन टू ओपन एंड गो बैक। बट फिर भी हम हमारे शो में एक एडवाइस क्वेश्चन ज़रूर, तो आप तो खाने के फील्ड में हो, खाने के फील्ड में बहुत सारे व्यवसाय अभी हो रहे हैं, बहुत सारे छोटे लोगों से लेके बड़े लोगों तक जो पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा सा कुछ विजन, बैकअप, इन्वेस्टिंग बैकअप लेके आ रहे हैं इस फील्ड में। बट सबसे जो छोटे हैं उनको वो ये बड़ा वाला ड्रीम तैयार, मतलब हो सकता है अब उनके लाइफ टाइम में, ये एक अपने आप में आप एक मिसाल हो किसी के लिए जिसने कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, उस फील्ड का मास्टर नहीं है, उसमें कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं है, पीएचडी नहीं है, ये आज अब प्रोफेसर हो खाने के इंस्टीट्यूट के इसमें, बट वो एक ड्रीम या एक मिसाल होनी चाहिए, राइट? तो ऐसे मिसालें और खड़ी होनी चाहिए सारे फील्ड्स में। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग खुद को छोटा समझते हैं, कुछ करते तो है लेकिन वो एक खुद को एक वो सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी में, या सेल्फ कॉम्प्लेक्स होता है उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते। बराबर। तो उनके लिए आप कुछ तो मैसेज आप दीजिएगा कि जो इस अभी हालात में है, जो सोच नहीं पा रहे, बट दे माइट हैव एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटी, जस्ट द कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर। कॉन्फिडेंस है नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सपने देखो,
यदि बड़ा बनना है तो सपने देखना पहले शुरू करो, और सपने देखते देखते वो पूरे करने की कोशिश करो, और पूरे करने की कोशिश करते समय कहीं से लोन मिल रहा है तो बहुत सारा लोन ले लो, बैंक पैसा दे रही है तो ले लो, और वो पैसे के ऊपर आपके सपने पूरे करना उचित बात नहीं है। एक पहले अपनी लेवल देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मेरे को कहाँ तक जाना है। कई बार ऐसा होता कि अपनी लेवल होती नहीं, फिर भी हम किसी के कारण ये बैंक के झोल झाल में आने के कारण वहाँ तक चले तो जाते, बाद में रिटर्न आना मुश्किल होता और फिर वो गिर जाते। इसलिए अपनी एक थोड़ी सी देख लो, मेरे को कहाँ तक बड़ा बनना है, अपना एक दायरा बना लो, उस दायरे तक जाने की कोशिश करो, खुद को सेव करो, और फिर धीरे धीरे एक एक पोर्शन जो है वो काबिल करके आगे बढ़ते जाओ। ये मैं सबसे कहूँगा कभी। हाँ, बढ़िया, धन्यवाद आप हमारे शो में आए, और ये पैशनेट पल्स में आपका जो कुकिंग का रियल पैशन और पूरी जर्नी आपने हमारे ऑडियंस के लिए अनफोल्ड की। मैं आशा करती हूँ कि ये शो जरिए बहुत सारे लोग जो वहाँ पे देख रहे हैं कि कोई एक मोटिवेशन ही मिल जाए, कोई एक एग्जाम्पल, मिसाल कहते हैं कि वो अगर मुझे मिल जाए तो शायद मैं कुछ अलग सोच सकता हूँ। तो यही हमारी कोशिश होती है ये शो के जरिए कि वो एक सोच आपकी तरह पहुँचे, और वो सोच से आप कुछ अलग करने की इच्छा करे, और इस दुनिया में कुछ दूसरा पॉजिटिव चेंज लाए, और वो सब चैंपियन करने के लिए पैशनेट पल्स आपके साथ है। और मेरे को सबसे बात आपका धन्यवाद देना पड़ेगा कि एक तो आप इतनी पढ़ाई करके आई मेरे बारे में कि सारी कुछ चीज़ें इनको, जैसे मैं हैरान हूँ कि मेरे घर में न रहते हुए भी सारी घर की चीज़ें इनको मालूम है। और दूसरी बात, पैशनेट पल्स ये नाम जो है बहुत ही पॉजिटिव है, और अच्छा लगा मेरे को। Yes, सच में, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, दिस वाज विष्णु जी at विष्णु जी की रसोई in Sunnyvale. We were honored to have him and give you all the management techniques, and if you have a passion to do something, from passion to startup, what the journey looks like. If you don't have anything, how you cultivate the culture behind you and make that supportive environment for you. We are here for you. If you need any help, please seek out, show us in your comment like what you're looking forward, and we'll bring those experts for you on our show and make sure that we cater your questions. We make sure that you get those answers, and let us know which field, which sectors, which guest you would like to see on our particular show, to motivate you, to get guidance and get your passion going. Well, happy to see you. This was Pranali signing off. Thank you. थैंक यू। Thank you. बढ़िया, मजा आ गया।